قال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فذنا وفاذ شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فاذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بر محمد وآل محمد صلوات. सकीना कहती थी बाबा मुझे बहुत मारा, सकीना कहती थी बाबा मुझे बहुत मारा, जहाँ भी जिसने भी चाहा मुझे बहुत मारा, सकीना कहती थी बाबा मुझे बहुत मारा, मदीने वाले मोहम्मद की मैं नवासी हूँ। अरे बताया जिस घड़ी मैं फातिमा की पोती हूँ, जो नाम दादी गाया मुझे बहुत मारा, सकीना कहती थी बाबा मुझे बहुत मारा, ये दर्द होगा फरामोश ना
कभी मुझसे। अरे थे उसके हाथ तुम्हारे लहू में डूबे हुए, कि जैसे शेर बाबा मुझे बहुत मारा। सकीना कहती थी बाबा मुझे बहुत मारा। और लईने डाला था जुल्फों में हाथ जैसे तेरे, तुम्हारे लाश से जिंदाने शाम तक से पकड़े के बालों से बाबा मुझे बहुत मारा। सकीना कहती थी बाबा मुझे बहुत मारा। और यूं अपने बच्चों को बाजार में हंसाते रहे, खुशी के वास्ते उनकी मुझे लाते रहे। अरे मैं चुप हुई तो दोबारा मुझे बहुत मारा। सकीना कहती थी बाबा मुझे बहुत मारा। और पीछे गई थी सफर में मैं ऊंट से गए। हर तलाश खत में हुई जब लगी मुझ पे, तलाश खत में हुई जब लगी मुझ पे।
बर मोहम्मद सल्लल्लाहु शिम्र कहता था मत सुनो मुख्तार, मैंने कैसे हुसैन को मारा। शिम्र कहता था मत सुनो मुख्तार, अरे मैंने कैसे हुसैन को सवार सीने पर लब हिलाने लगा तेरा मौला, प्यास में बादुआएं देने लगे। अरे मुझको शाबीर ऐसा लगता था, अरे मैंने होठों पे कान रख के सुना, अरे वो तो गाजी को याद कर कहता था मत सुनो मुख्तार, मैंने कैसे हुसैन को मारा। और कैसे गुरबात थी इब्ने ज़हरा पर, अरे देखती थी सकीना ये मंज़र, और मेरे हाथों में शहद की गाड़ी थी, अरे मैं रुलाता रहा उसे हंस कर। लाशे आबास भी तड़पने लगी, अरे जब तमाचा हुसैन को मारा। शिम्र कहता था मत सुनो मुख्तार,
उसका फेर दिया। अरे ये बजाती जो पुष्ट गर्दन से तेरे मौला को ज़िब्ह मैंने किया। शिम्र कहता था मत सुनो मुख्तार, मैंने कैसे हुसैन को मारा। और हाँ वो लम्हा अजीब था मुख्तार। अरे मेरे हाथों में तेज थी तलवार। अरे मैंने यूं भी किए थे तेरा वार। कुंद हो जाता था मेरा खंजर। अरे मुझसे कटता ना था गला उसका। अरे उसकी माँ ने था हाथ रखा हुआ। शिम्र कहता था मत सुनो मुख्तार, मैंने कैसे हुसैन को मारा। शिम्र कहता था मत सुनो मुख्तार, मैंने कैसे हुसैन को मारा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। आखिरी रात सकीना की, आखिरी रात सकीना की। हाय 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 हाय, मैं खाक पसो जाऊंगी, मैं खाक पसो जाऊंगी। हाँ कहती हूँ बाबा सीने पे सुलाने को, कहाँ कहती हूँ बाबा। कहती हूँ कि चेहरा ही दिखा जाइए बाबा, मरने से मेरे पहले ही आ जाइए बाबा। पहलू में छुपाने को कहाँ कहती हूँ बाबा। मैं खाक पसो जाऊंगी, मैं खाक पसो जाऊंगी। हाँ कहती हूँ बाबा सीने पे सुलाने को, कहाँ कहती हूँ बाबा। बाबा मेरे बचपन का तकाजा
जाऊंगी, हाँ कहती हूँ बाबा सीने पे सुलाने को, कहाँ कहती हूँ बाबा। बाबा मेरे जख्मों की दवा कौन करेगा, अब जान सकीना को भला कौन कहेगा, पहलू में छुपाने को कहाँ कहती हूँ बाबा। मैं खाक पसो जाऊंगी, मैं खाक पसो जाऊंगी, हाँ कहती हूँ बाबा सीने पे सुलाने को, कहाँ कहती हूँ बाबा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा जबरदस्त पानी मासूम ने मांगा तो तमाचे खाए, पानी मासूम ने मांगा तो तमाचे बाबा को सकीना तो तमाचे खाए, रोई बाबा को सकीना तो तमाचे जल के खैमों से निकलते हुए उस बच्ची ने, जल के खैमों से निकलते हुए उस बच्ची ने रास्ता पूछा न जब का तो तमाचे तमाचे खाए, पानी मासूम ने मांगा तो तमाचे खाए। क्यों मेरे बाबा पे जालिम तू चलाता है छुरी, जब शिम्र से पूछा तो तमाचे खाए, उसने जब शिम्र से पूछा तो तमाचे खाए। भाई का नन्हा सा सर गिरता था जब ने उसने गोदी में उठाया तो तमाचे खाए, उसने गोदी में उठाया तो तमाचे खाए। मीर सज्जाद सकी
भी है जहरा की तरह, मीर सज्जाद सकीना भी है जहरा की तरह। हो गई जब ये यतीमा तो तमाचे खाए, हो गई जब ये यतीमा तो तमाचे खाए। पानी मासूम मन मांगा तो तमाचे खाए। रोई बाबा को सकीना तो तमाचे खाए। पुष्णुजी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बाबा से बुलंद सलवात दिया करे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक नोहे की चंद बंद पेश करता हूँ। तमाम मरहुमीन की बुलंदी दर्जात के लिए, हाज़िरीन मजलिस, बानियान मजलिस के तमाम मरहुमीन की बुलंदी दर्जात के लिए मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियाँ बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात में मादर। क्यों कहती हो मक्तल में चली आऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नन्हे से कलेजे पे मेरे चलती है तलवार, खुलता नहीं क्यों आपने बांधे हैं ये हथियार। मैं आपको खो गई ना कभी पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में
चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। शब होगी तो फिर खाक पे सोएंगे कहाँ, सीने पे तो असगर को सुलाएंगे वहाँ। अच्छा मैं वही खाक पे सो जाऊंगी बाबा, मैं रात को मगतल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। एक सूरह फातिहा की इल्तिमास है बानियाने मजलिस, हाज़रीन मजलिस के तमाम मरहूमीन, तमाम शोहदा को याद रखते हुए बिलखुसूस उनके लिए जिनका कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं, मरहूम हुसैन अली हाशिम अली वीरानी, मरहूम सज्जाद हुसैन अली वीरानी, मरहूमा गुलशन बानो हसन अली रौजानी, मरहूम हुसैन अली मोहम्मद फरिश्ता, मरहूम हुसैन रजा मोहम्मद रजा फरिश्ता, मरहूम हुसैन अली फजल भाई फरिश्ता, मरहूम आशिक अली रौजानी, मरहूमा खैरुन्निसा वीरानी फैमिली के तमाम मरहूमीन, फरिश्ता फैमिली के तमाम मरहूमीन, हाज़रीन मजलिस और बानियाने मजलिस के तमाम मरहूमीन को याद रखते हुए रहमतुल्लाह मन क़रा अल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। रहिमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। दुरूद पढ़िएगा मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम सय्यिदिना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आलिमुल ग़ैबि फ़ला युज़हिरुहु अला ग़ैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम सामीन अज़ादारा ने सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4 दिन आपकी खिदमत में गुफ्तगू करनी है और इस दफ़ा चारों दिनों के लिए हमने अलग अलग मौजू का इंतखाब किया है। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सकी, क्योंकि कल वाला मौजू भी आज ही मौजू के साथ मुर्तबित है, लिहाजा अगर कोई बात रह जाए तो इंशाअल्लाह उसको कोशिश की जाएगी कि कल उसको मुकम्मल किया जाए। हमारा आज का जो मौजू है वो है इल्म इमाम। एक बहुत ही अहम मौजू है कि इमाम का इल्म कैसा होना चाहिए। बहुत सारे सवालात इसके हवाले से आते, तो इस मौजू के लिए मैंने जिस आयत करीमा का इंतखाब किया बहुत ही मशहूर मारूफ आयत है। इस आयत में इमाम के इल्म गैब की तरफ इशारा किया जा रहा है। परवरदिगारी इरशाद फरमा रहा है कि आलिमुल गैबी, खुदा गैब को जानने वाला है। खुदा गैब को जानता है और कोई गैब को नहीं जानता। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, खुद गैब को जानता है लेकिन किसी एक को भी गैब को जाहिर नहीं करता। आगे बयान की आयत ने इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, मगर ये कि जिनसे खुदा राजी हो जाए, जिनसे अगर खुदा राजी हो जाएगा तो उनको मुत्तला कर देगा गैब से। यह आयत का तर्जुमा हो गया। इसमें इल्म गैब की तरफ इशारा किया जा रहा है। देखिए, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। तमहीद बहुत ज़रूरी है। ये जो तमहीद आपकी खिदमत में बयान करूंगा, ये तमहीद अगर समझ में आ गई तो आपको मालूम हो जाएगा जितने भी मकामात हैं जो मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को खुदा ने अता फरमाए हैं वो क्यों अता फरमाए हैं। एक सवाल ये किया जाता है जो अक्सर जवान सवाल करते हैं, आगा साहब क्या वजह रही कि इमाम अली ही को इमाम बना दिया गया, किसी और को इमाम बना देता खुदा, उसके बाद इमाम हसन को इमाम बना दिया। ये 14 ही के पास ये तमाम मनसब क्यों हैं? यानी परवरदिगार ने अपने तमाम खुसूसियात का मरकज इन 14 ही को क्यों बनाया है? ये सवाल जहनों में आता है। तो लिहाजा आज मैं तमहीद बयान करूंगा इंशाअल्लाह, और अगर ये तमहीद आप तक पहुंच गई तो तमाम मकामात आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज़े होते चले जाएंगे।
देखिए ये जितने भी मकामात हैं जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को खुदा ने नसीब फरमाए, उसकी वजह यह है, पहले आप ये कायदा अपने जहनों में आप रख लीजिए, इसको महफूज कीजिए। एक कुल्लिया कायदा परवरदिगार आलम की जानिब से है, ये हर एक के लिए है। जितना तुम मुझसे नज़दीक होते चले जाओगे, जितना जो भी कुर्ब परवरदिगार को हासिल करता चला जाएगा, जो भी खुदा से नज़दीक होता चला जाएगा, या यूँ कह दिया जाए इल्मी ज़बान में, जो भी खुदा का कुर्ब महज हासिल कर लेगा, उसको परवरदिगार आलम तमाम मकामात जो उसकी ज़रफ़ियत के मुताबिक होंगे उसको अता फरमा देगा। तो हमें साबित क्या करना है कि खुदा से सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है। ये अगर साबित हो गया, तमाम मकामात घूम के जो आएंगे वो इसी एक मौजू की जानिब घूमेंगे, क्योंकि कुर्ब परवरदिगार इस शख्स का खुदा से नज़दीक है, कुर्ब महज इस शख्स को हासिल हो गया है। लिहाजा जो भी कमालात होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, परवरदिगार आलम उसको अता करता चला जाएगा। तो मैं कुर्ब कब समझाना चाह रहा हूँ कि कुर्ब परवरदिगार किसको मिला और कैसे मिला, उसके मवारिद क्या हैं। तो तवज्जो कीजिए यहाँ से। देखिए, चाहे नबूवत का ओहदा हो, चाहे इमामत का ओहदा हो, चाहे कोई रसूल हो, नबूवत का ओहदा, इमामत का ओहदा, रिसालत का ओहदा, ये इलाही ओहदे हैं सारे। इसके लिए ज़रूरी क्या है? इन तीनों चीज़ों के लिए ज़रूरी यह है कि इन तीनों चीज़ों से पहले, इससे पहले कि एक शख्स नबी बने, इससे पहले कि एक शख्स रसूल बने, इससे पहले कि एक शख्स इमाम बने, इन तीनों मनसबों के लिए ज़रूरी यह है कि उसके पास विलायत होनी चाहिए। जब तक विलायत नहीं होगी वो ना नबी बन सकता है, ना रसूल बन सकता है, ना ही इमाम बन सकता है। यह कायदा कुल्लिया है, जो भी नबी होगा, रसूल होगा, इमाम होगा, उसके पास विलायत कुल्लिया होनी चाहिए, तब जाकर वो नबी बन सकता है। अच्छा, उस तरफ से आप आए, ये तो हो सकता है मुमकिन एक शख्स क्या हो, वली तो हो, विलायत रखता हो, लेकिन ना नबी हो, ना रसूल हो, ना इमाम हो। मिसाल है कोई, जनाब हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की मिसाल है। ना नबी थे, ना रसूल थे, ना इमाम थे, लेकिन वली खुदा थे। यानी वो कुर्ब महज जनाब अबुल फजल अब्बास को भी हासिल था। तो बस साबित क्या हुआ, जो नबी होगा, रसूल होगा, इमाम होगा, उसके पास विलायत होनी चाहिए, विलायत कुल्लिया होनी चाहिए। इसकी दलील क्या है? आलम ज़र। आलम ज़र को अगर आप देखें, रिवायात उठाकर देखें, जितनी भी आलम ज़र की रिवायात हैं, आलम मीसाक की रिवायात हैं जो मिलती हैं, उसमें क्या बयान किया गया? ये जो जवान सवाल करते हैं कि क्या वजह है इन्हीं के पास ये ओहदा आया, उसका जवाब दे रहा हूं। आलम ज़र में सबसे पहले किसने आगे बढ़कर खुदा की रुबूबियत का इकरार किया? रसूल अल्लाह ने, उसके बाद मौला कायनात ने, उसके बाद तमाम इमामों ने आगे बढ़कर खुदा की रुबूबियत का ऐलान किया, परवरदिगार तू ही हमारा रब है। एक ही मरहला आया, विलायत इनको अता की गई। उसके अलावा कुर्ब महज को अगर समझना है तो एक रिवायत मिलती है मेराज की। मेराज की रिवायत में ये मिलता है कि जब नबी अकरम को मेराज नसीब हुई, मेराज पर गए, पहले आसमान पर जनाब आदम को देखा, फिर आगे बढ़े जनाब याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर आगे बढ़े जनाब इब्राहिम को देखा। एक ऐसा मकाम आया जब सातवां आसमान आया है तो जिब्राइल साथ हैं। कुर्ब महज को समझाना चाह रहा हूं। यह कुर्ब महज अगर वाज़े हो गया, उसके बाद जितने भी मकामात हैं वो वाज़े होते चले जाएंगे। जैसे सातवें आसमान पर नबी अकरम की ज़ात पहुंची, जैसे ही वहां पर पहुंची, जिब्राइल ने नबी अकरम से खिताब किया, या नबी अल्लाह, हाज़िही सिदरतुल मुंतहा, का ये सिदरतुल मुंतहा है, क्या किया जाए? कहा कि ये वो मकाम है कि यहां पर सिर्फ आप ही पहुंच सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नबी आज तक इस सातवें आसमान से आगे नहीं गया है। यानी जिब्राइल ने समझा दिया, जो कुर्ब महज खुदा आपको अता करना चाह रहा है वो किसी नबी को अता नहीं हुआ है। का अंत तजूज़ इंशाअल्लाह, का आप इससे आगे बढ़ जाएंगे। उसकी वजह क्या है?
लिनुरियहु मिन आयातिहिल कुबरा, ताकि परवरदिगार आपको बड़ी बड़ी आयात दिखाए। मुझे बताइए, जब नबी अकरम मेराज पर गए, सबसे बड़ी आयत जो दिखाई गई है वो क्या है? सबसे बड़ी आयत मौला कायनात के लहजे में कलाम किया गया। तो आपने मुलाहिदा किया, नबी अकरम और आगे बढ़े, एक ऐसी मंजिल आई, काबा कौसैन और अदना की मंजिल। यही वो मकाम कुर्ब परवरदिगार आलम है, यही परवरदिगार आलम का कुर्ब महज है। नबी आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि 2 कमानों से कमतर का फासला रह गया। यही वो कुर्ब महज परवरदिगार जो नबी अकरम के हिस्से में आया। और हमारा अकीदा यह है कि जितने भी मकामात नबी अकरम के कल्ब मुबारक पर परवरदिगार आलम ने नादिल फरमाए, चाहे वो इल्म परवरदिगार हो, चाहे वो हिल्म परवरदिगार हो, चाहे वो तकवा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जो भी कमाल के मरातिब हैं, जो कमाल के मरातिब परवरदिगार आलम ने अपने नबी को नसीब फरमाए, वो तमाम कमालात मिनोअन सिवाय नबूवत के अगर एक ज़ात में जलवा अफरोज होते हुए नजर आएंगे तो वो एक ही ज़ात है, उस ज़ात को अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कहा जाता है। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। तो यही वो मकाम है जो विलायत कुबरा कहलाया जाता है। विलायत कुबरा अगर हासिल है तो नबी अकरम को हासिल है। और ये विलायत मैंने बयान किया, नबूवत के लिए भी बहुत अहम है, रिसालत के लिए भी अहम है और इमामत के लिए भी अहम है। विलायत कुल्लिया जिसको मिल गई, क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम विलायत कुल्लिया के मालिक थे, लिहाजा विलायत कुल्लिया के जब ये मालिक बन गए, अब मुझे बताइए, इल्म परवरदिगार जिस कल्ब पर उतरेगा वो किस कल्ब पर उतरेगा? वो एक ही कल्ब है, या रिसालत का कल्ब है या इमामत का कल्ब है? ये मुंतकिल होता रहेगा। और ये दुनिया जो है वो मरातिब के एतबारात से, जिसका जो मर्तबा होगा, जिसकी विलायत खुदा के नज़दीक जिस एतबार से होगी, उसी एतबार से उसको मकाम नसीब किया जाएगा। तो पूरी दुनिया के अंदर रिवायत को जब हमने खंगाला तो रिवायत का निचोड़ यह है, विलायत कुल्लिया सिर्फ इनके पास है। तो लिहाजा अब इल्म जब खुदा का नादिल होगा, इल्म जब खुदा उतारना चाहेगा तो किसके कल्ब पर उतारेगा? मौला कायनात के कल्ब पर। और ये वजह रिवायतें आप देखें, एक बहस आती है, आया ये जो अहले बैत के पास इल्म है इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी महदूदियत क्या है, इसकी कैफियत क्या है, ये कहाँ से इल्म को हासिल करते हैं, इनके इल्म का सरचश्मा क्या है? ये सवाल ज़हनों में आते नहीं आते? इमाम कैसे जान जाता है एक चीज़ को? कौन सा ऐसा कमाल है कि जिसको वो यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है और इल्म फौरन उसके कल्ब में खुदा उतार देता है? कोई ऐसे मनाबे हैं? रिवायत ने मनाबे को बयान किया, सरचश्मा इल्म इमाम, एक पूरा मौजू है। इमाम के सरचश्मों में से एक सरचश्मा क्या है? सबसे पहला सरचश्मा परवरदिगार आलम की किताब कुरान मजीद है। इमाम उससे कनेक्ट होता है, उससे फिर इल्म को हासिल करता है। और यह शर्त नहीं है कि दुनिया में आने के बाद इमाम उस इल्म को हासिल करेगा, बल्कि खुदा की जानिब से इल्म हासिल करके आता है। इंशाअल्लाह कल जो मौजू आएगा, जो बचेगा, कमसिनी और इमामत, उसमें बयान करूंगा। इमामत के लिए शर्त नहीं है कि उसकी उम्र क्या है, दुनिया में आने के बाद वो इक्तिसाब करे किसी से, मुमकिन नहीं है। जब खुदा उसको हादी बनाकर भेज रहा है, जब हिदायत के लिए भेज रहा है, तो अब उसको वो इल्म देकर भेजेगा। मुझे बताइए, जब आप किसी कंपनी में एक बॉस हो, कंपनी का मालिक, वो अपने बाद किसी को मैनेजर बनाए, भाई देखो मेरी कंपनी को तुम देखोगे, मुझे बताइए उसको वो तमाम इत्तलाआत देगा नहीं देगा जो उस कंपनी के लिए ज़रूरी होंगी? बिल्कुल देगा। ऐसा नहीं हो सकता वो मैनेजर तो बना दे, कहीं ये चीज़ें नहीं बताऊंगा, देखो ये 2-3 चीज़ें बता रहा हूं, अब तुम इसको चलाते रहो। कभी नहीं हो सकता। वो एतराज़ करेगा कि तुम मुझे मैनेजर बना रहे हो, इख्तियारात तो दो,
कंपनी के अहलो अहवाल से तो मुझे आगाह करो, कुछ चीजें तो बताओ, मुझे इख्तियार तो दो। अब मुझे कहने दीजिए, परवरदिगार आलम जब अपने नबी को या अपने इमाम को इस दुनिया में भेजेगा, मुझे बताइए, जब इस दुनिया के बारे में इमाम को मालूम ही नहीं होगा मुझे करना क्या है, उसको भेजेगा ही नहीं। लिहाजा जरूरी है इस दुनिया के लिए, मादी दुनिया हो, मानवी दुनिया हो, आलम माना हो, आलम मलकूत हो, चाहे ये मादी दुनिया हो, हर एक का इल्म देकर इमाम को जमीन पर भेजेगा खुदा। जरूरी है खुदा के ऊपर, वरना खुदा के ऊपर हर्फ आएगा, खुदा की हिकमत पर हर्फ आएगा कि परवरदिगार तू हकीम है, तो हिदायत करना चाहता है, लिहाजा तू हिदायत करने के लिए ऐसे को भेज रहा है जो खुद इंसानों का मोहताज है, उससे जो भी सवाल करते हैं वो ना कहता है। नहीं, इमाम की जिंदगी में हो नहीं सकता, सवाल किया जाए उससे वो कहते ना मुझे नहीं मालूम। तो लिहाजा जो जरूरी चीजें हैं उनमें सबसे अहम चीज क्या है, जहां इस्मत देकर भेजता है उसके साथ इल्म परवरदिगार उसके पास मौजूद होता है। तो पहला मंबा क्या है, कुरान मजीद। क्या कुरान से मुत्तसिल होगा और यह दुनिया में आने के बाद हासिल नहीं करेगा, जब आएगा वहां से खुदा की जानिब से जब जमीन पर उतरेगा तो वह इल्म में किताबुल्लाह को रखता होगा। रिवायत क्या है, अब रिवायत की तरफ चलें। यही वजह मेरे मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सल्लल्लाहु अलैहि हदीस नूरानियत के अंदर एक जुमला मिलता है मेरे मौला का। मौला इसी अम्र की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि अल्हमनी अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इल्मा मा फी है। देखिए कुरान कहां पर है, कुरान कहां पर था, एक जो कुरान वाकई जिसे आप कहते हैं वह भी कहां पर है। तमाम उलमा ये जवाब देंगे वो इल्म परवरदिगार में। बहुत तवज्जो कीजिएगा, वो कुरान इल्म परवरदिगार में है। इल्म परवरदिगार का ताल्लुक कहां से, लोहे महफूज से। ये जो मौला इशारा फरमा रहे हैं अल्हमनी अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इल्मा मा फी है, कि परवरदिगार आलम ने मुझे इल्हाम किया है हर उस चीज का जो लोहे महफूज में छुपा हुआ है। यानी मौला बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में आने के बाद उस लोहे महफूज को जानते हो, अभी दुनिया में नहीं आएंगे क्योंकि ये नूर परवरदिगार से मुत्तसिल हैं। लिहाजा जो कुछ लोहे महफूज में है, तकदीरात परवरदिगार जो लोगों के लिए लिखी गई हैं, कुरान का इल्म है, लोगों की तकदीरात हैं, कज़ा व क़द्र इलाही है, कौन कब मरेगा, कितनी जिंदगी उसको नसीब की जाएगी, तमाम चीजें मौला फरमा रहे हैं अगर तुम जानना चाहते हो वो मेरे पास मौजूद है, वो मैं जानता हूं। और यही वजह फिर सवाल आता है, ये अली जब दुनिया में आए, ये अली ने कुरान की तिलावत क्यों करके दिखा दी, इसका ताल्लुक यहीं से। अली कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ताज्जुब कर रहे हैं। सबसे पहली चीज मैंने बयान की, विलायत को समझिए कि विलायती ताल्लुक इनका परवरदिगार आलम से कितना गहरा है, अमीक ताल्लुक है। अगर ये राबिता समझ में आ गया मासूमीन का परवरदिगार के साथ, तो समझ में आ जाएगा कि अली जब दुनिया में आए, आगोश रिसालत में इमामत जब आई, मेरे मौला जब आए हैं, एक अजीब किस्सा लिखा गया। रसूल खुदा की ज़ियारत अभी नहीं की, आंखें बंद हैं। जैसे रसूल खुदा ने कहा अली हम हाँ गए, आंखें खोलो, अभी आंखें नहीं खोली हैं, शाम मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं क्या फौरन से अली ने कहा अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाइसल हुदा, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। शाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं इसका मकसद यह है अली ने आंखें नहीं खोली है, आवाज रिसालत को सुना, ये बयान कर दिया कि अली और रसूल अकरम इससे पहले कहीं पर साथ रहा करते थे। तभी तो मेरे मौला ने आंखें नहीं खोली, रिसालत की आवाज से आशना है। अना व अली मिन नूरिन वाहिद का मिस्ताक, का मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। तो अली जब आए आगोश रिसालत में, वहां पर सुनते रहते हैं, सिर्फ मुझे इर्तिबात देना है। अली कुछ सुनाओ, क्या सुनाऊं या रसूलुल्लाह, तौरात सुनाऊं, ज़बूर, इंजील या कुरान मजीद। तौरात नाजिल हो चुकी है, अली ने सुना दिया, इसमें क्या कमाल था। लोग ये कह सकते हैं भाई तौरात तो पहले नाजिल हो चुकी है, अली ने अगर सुना दी तो इसमें कमाल क्या है। इंजील नाजिल हो चुकी है,
इल्म अली इब्न अबी तालिब को जरा देखिएगा, ज़बूर नाजिल हो चुकी है, भाई कुरान तो अभी आया ही नहीं है, अली पढ़ के सुना रहे हैं। कमाल क्या है अली इब्न अबी तालिब का कमाल ये है, ये मेरे मौला जो हदीस नूरानियत में जब सलमान अबू ज़र आए थे, का अलहमनी अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इल्मा माफी है, ये उसी अम्र की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम्हें क्या मालूम अली का मकाम क्या है, अली का इल्म किस मकाम पर मौजूद है। अली का ताल्लुक लोहे महफूज के साथ है। अली के पास कुरान आए ना आए, अली जब आता है तो लोहे महफूज का इल्म का जमीन पर आता है। मामूली मराहिल नहीं है, यह फजल परवरदिगार है, यह इल्म इमाम फजल परवरदिगार है। अगर यह फजल ना होता तो क्या होता, इनके पास इल्म नहीं होता। और फजल क्यों दिया गया, फजल भी हर एक के हिस्से में नहीं आता है। का खुदा को इनसे मोहब्बत थी, नहीं, खुदा ने इनके ज़र्फ को देखा, इनके वजूद को देखा, इनके वजूद को अपने नूर से मुज़य्यन किया, फिर ये वजूद इस काबिल बना, वो ज़र्फ इस काबिल बना कि खुदा अपने इल्म को उसमें उतार रहा है। तभी तो खुज़ानुल इल्म कहा जाता है कि नहनु खुज़ानुल इल्म, कि हम खुदा के इल्म के खजानादान हैं। यानी क्या मकसद, यानी खुदा जो भी इल्म उतारेगा वो इनकी ज़ात पर उतारेगा। अज़ीज़ान गिरामी, इसी वजह से रिवायात में बेतहाशा मिलता है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रिवायत मिलती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। मौला फरमाते हैं इल्म में इमाम की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि इस इल्म का मकाम यह मखसूसुम बिल फज़ल कुल्ले व गैर तलब मिन्हु वला इक्तिसाबिन बल इख्तिसासुम मिनल मुफ़ज़लिल वहाब। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, तवज्जो कीजिएगा, इमाम इसमें बता रहे हैं ये जो इल्म मखसूस किया गया है किसके साथ, इमाम के साथ, का ये खुदा की जानिब से एक फजल है, कुल्ली फजल है, मजमुई फजल परवरदिगार आलम ने, यानी जो कुछ परवरदिगार इल्मी हवाले से इमाम को देना चाहता था वो दे दिया। और ये देना किस तरह का है, इसकी कैफियत क्या है, इल्म इमाम की कैफियत, कैसा इल्म है ये। आया दुनिया में आने के बाद किसी के सामने घुटनों को टेका फिर इल्म को हासिल किया है। इमाम फरमा रहे हैं कि वला गैर तलब मिन्हु वला इक्तिसाबिन, इमाम रजा का किसी से तलब नहीं किया दुनिया वाले से, और ना ही दुनिया में से किसी के सामने घुटनों को टेक कर कर्ज किया है, बल्कि कैसे हासिल किया, बल इख्तिसासुम मिनल मुफ़ज़लिल वहाब, बल्कि खुदा की जानिब से फल की सूरत में इसको खुदा से लिया है। ये इल्म की कैफियत है। अब जब खुदा से इल्म को इमाम लेगा, मुझे बताइए उसमें खता होगी, उसमें लग़ज़िश होगी, उसमें कोई गलती होगी, फिर अब ये सवाल नहीं बनता है कि अली के सामने जो भी सवाल करने आता था का मौला बता दीजिए। जैसे ही एक शख्स आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, हर एक को मौला अलग अलग जवाब दे रहे हैं, मसला एक है। इमाम साबित करना चाह रहे हैं ये जो मैं जवाब दे रहा हूं ये मेरा जाती इल्म नहीं है, ये खुदा ने मुझे अता किया है, तब जाकर जवाब दे रहा हूं। खुदा ने इल्म अता किया है। अली कैसे जवाब दे देते हैं, कभी सोच लिया करें, सुनते रहते हैं हम, ये अली को सोचने का मौका क्यों नहीं मिलता है, ये अली सोचने का टाइम क्यों नहीं लेते हैं। रिवायत के जुमले ये हैं कि जब मासूम से सवाल किया, मौला ये आप आनन फानन में जवाब कैसे दे देते हैं। मेरे मौला ने कहा कि हमारे और खुदा के दरमियान एक नूरी उमूद है, एक नूरी पिलर है, जब हम जानना चाहते हैं तो उस नूर से मुत्तसिल होते हैं, जैसे उस नूर से मुत्तसिल होते हैं वो नूर हमें खुदा के नूर से मिलाता है, जो कुछ जानना चाहते हैं खुदा हमें अता कर देता है। खुदा का फजल है अज़ीज़ान गिरामी। इसी वजह से मौला फरमा रहे मखसूसुन बिल फज़ल, ये मखसूस है खुदा के फजल के साथ। अज़ीज़ान गिरामी, रिवायात में इमाम के इल्म की तरफ जो इशारात किए गए हैं, इमाम इल्म गैब जानता है। इल्म गैब की जब बात आती है लोग घबरा जाते हैं, क्या कैसे जानता है इल्म गैब, इमाम के पास कैसे इल्म आ जाता है। अच्छा, गैब की जब बात आती है तो फिर इसमें मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं। अच्छा, इल्म गैब अगर इनके पास था, इमाम हुसैन को नहीं मालूम था मुझे करबला
में शहीद कर दिया जाएगा? मौला कायनात को मालूम था, नहीं मालूम था? कि ये वही रात है जिसका मुझसे वादा किया गया था। ये इल्म गैब तो है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, बहुत सारे इश्कालात हैं जो इसके ज़िम्न में हल होने वाले हैं, सवालात किए जाते हैं। का इमाम हुसैन को नहीं मालूम था? नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि इमाम हुसैन जब चले गए उसका मतलब है खुदकुशी की, नाउज़ु बिल्लाह। इमाम अली मस्जिद में चले गए, इल्म गैब रखते थे, आपका खुद इद्दआ है, इसका मतलब है खुदकुशी की। कितने ही अफराद ऐसे थे जो रसूल की खिदमत में आते थे, मुनाफिकीन थे, रसूल जानते थे, रसूल ने इंतकाम क्यों ना लिया? अज़ीज़ान गिरामी, इन सब का जवाब क्या है? इन सब का जवाब यह है कि हर जगह इमाम मासूम अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए इल्म गैब का इस्तेमाल ही नहीं करता है। यही इमाम का कमाल है। अगर इमाम मासूम, फ़र्ज़ कीजिए इमाम मासूम हर जगह अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए इल्म गैब को इस्तेमाल करता रहे, जो ताकत खुदा ने इसको अता की है, मुझे बताइए लोग उस पर एतमाद करेंगे? कि ये तो अपने लिए काम किए जा रहा है, खुदा ने इसको एक ताकत अता फरमाई है, ये उस ताकत का इस्तेमाल अपने लिए कर रहा है। लोग मुतनफ़िर होते चले जाएंगे, लोग दूर हो जाएंगे, लिहाजा इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है। चाहे मौजज़ा हो, इमाम के पास मौजज़ा होता है, मौजज़ा इमाम कब दिखाता है? हर बात पर? आंखें खोली मौजज़ा, घर से बाहर आया मौजज़ा, ऐसा तो नहीं होता। मौजज़ा कब दिखाएगा? जब इस्लाम के लिए, जब खुदा की मर्जी होगी मौजज़ा दिखाओ, तो इमाम मौजज़ा दिखाएगा। खुदाई पहलू उसके सामने होता है, रंग खुदाई उसके वजूद पर चढ़ा होता है, अब उसका हर अमल खुदाई होगा। लिहाजा अपने ज़ाती मनफ़ियत के लिए, ज़ाती मफादात के लिए ना मौजज़े का इस्तेमाल इमाम करेगा, ना इल्म खुदा ने जो उसको जो इल्म खुदा मिला है, इल्म खुदा से कोई चीज़ अपने लिए इस्तेमाल करेगा, इम्कान नहीं है। पहला जवाब। दूसरा जवाब क्या है? देखिए, इमाम को मालूम होता है ये जो मौत आ रही है ज़ाहिरी एतबार से, मुझे ये जो मैं ज़ाहिरी एतबार से चला जाऊंगा, इमाम हुसैन गए, मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम गए, फ़र्ज़ कर लीजिए मालूम था मौला को, जो कि मालूम था, इमाम फिर भी चले गए। इसका जवाब यह है, देखिए इमाम का कमाल ही यह है, और यह भी ध्यान में रखिएगा, अल कलाम यजुरुल कलाम, बात से बात निकल रही है ताकि बात वाज़ेह हो जाए। इमाम इबादत क्यों करता है? इमाम को इबादत की ज़रूरत है? आपका इद्दा यह है कि इमाम कामिल पैदा होता है, इंसान कामिल कहा जाता है इमाम को, यानी कोई नक्स और ऐब इमाम की ज़ात में नहीं होता है। इमाम का वजूद बेऐब होता है, बेनक्स होता है, कमाल ही कमाल उसके वजूद में होता है, क्योंकि खुदा की जानिब से आ रहा है, वो खुद कमाल, तो लिहाजा कमाल से कमाल ही तो सादिर होगा। और क्या सादिर होगा? फिर भी इमाम इबादत कर रहा है। सवाल जवाब दिया गया कि इमाम जो इबादत करते हैं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा इसको, इमाम जो इबादत करते हैं, इमाम के पास होती है इस्मत। अब इस्मत के अंदर परवरदिगार आलम ने कोई लॉक नहीं लगा दिया है कि इमाम गुनाह कर ही नहीं सकता है, कर सकता है, नहीं करता, यही इमाम का कमाल है। भाई अगर कोई लॉक लगा देता तो ये क्या कमाल हो गया, खुदा ने रोका हुआ है, इनकी जाती कोई चीज थोड़ी है, जाती इनका कमाल थोड़ी है। इस्मत जो दे दी हमें भी देता और हमारे सामने गुनाहों का एक बाड़ लगा देता, दीवार खड़ी कर देता, हम भी गुनाह ना करते। नहीं, यही इमाम का कमाल है। इमाम को जो इस्मत दी जाती है, इमाम इस इस्मत को महफूज रखने के लिए इबादत करता रहता है, क्योंकि इमाम का लम्हा ब लम्हा कमाल की जानिब कमाल पर है। उस कमाल को महफूज रखने के लिए, उस इस्मत को महफूज रखने के लिए इमाम इबादत करता चला जाता है, ताकि जो इस्मत खुदा ने दी है वो इस्मत इमाम की महफूज रहे। तवज्जो कर रहे हैं आप? तो खुदा ने इस्मत अता की है कि इमाम चले गए करबला में, इमाम को मालूम नहीं था। दूसरा जवाब, इमाम का कमाल ही इसी में है कि इमाम खुदा की कज़ा व क़द्र के सामने तस्लीम होता है। खुदा की कभी भी कज़ा व क़द्र से इमाम फरार नहीं करता है।
कभी फरार नहीं करेगा। अगर इमाम को फर्ज कीजिए मालूम था, जो कि मालूम था कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा, मुझे ज़रबत लगाई जाएगी, मेरे सर से खून निकलेगा, मेरी शहादत वाक़ई हो जाएगी, फिर भी इमाम क्यों गए? क्योंकि इमाम को मालूम था कि यह खुदा की कज़ा व क़द्र है, खुदा ने मेरी मौत को हतमी करार दे दिया है, लिहाजा इमाम होता ही वो है, इमाम का कमाल ही इसी में है कि खुदा ने हतमी कर दिया है, लिहाजा अब मैं खुदा की कज़ा व क़द्र से फरार कर ही नहीं सकता हूं। इसका इल्म गैब के साथ ताल्लुक है, लेकिन इस एतबार से तो अज़ीज़ान गिरामी, तो इल्म इमाम में बड़ी अमीक चीज़ है। इसका इल्म किसी दुनिया से लिया हुआ इल्म नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम ने इसको यह इल्म अता किया। और तारीख़ उठाकर देखिए, रिवायात उठाकर देखिए, मेरे मौला ने हमेशा इस पर फ़ख्र किया है। एक मंबा इसका कुरान होता, कुरान से जुड़ा होता इमाम। दूसरा मंबा क्या है? नबी अकरम की ज़ात। नबी अकरम से यह इल्म को लेते हैं। जो कुछ खुदा नबी को अता करता है, इल्म अगर खुदा नबी को अता करता है, वो तमाम का तमाम इल्म अगर मुंतकिल होगा तो इमाम की ज़ात में मुंतकिल होगा। दूसरा मंबा इल्म का। कभी ऐसा होता है कि ना कुरान से इर्तिबात होता है, ना रसूल अकरम से लेते हैं, अलग तरीका होता है, वो इल्हाम का तरीका होता है। यानी एक रूहुल कुदुस आता है, जो कहते हैं बहुत बड़ा मलक है, जिब्राइल से भी बड़ा मलक रूहुल कुदुस कहा गया रिवायत में। वो रूहुल कुदुस आता है, इमाम के कल्ब मुबारक में उस इल्म को डाल कर जाता है जब भी इमाम जानना चाहता है। और हर दफ़ा इमाम इल्म गैब जानता भी नहीं है, ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए। रिवायात मिलती हैं, आया एक शख्स इमाम के पास, मौला आपको इल्म गैब है? का युबसतु लनल इल्म फनअलम व युक़बज़ु अन्ना फलनअलम। जब हमें अता कर दिया जाता है तो जान जाते हैं, जब हमें अता नहीं किया जाता तो नहीं जानते हैं। इरादे खुदा से जब इमाम मिलना चाहता है, आनन फानन, शायद ये भी समझाने के मारे कह रहा हूं, इससे भी तेज रफ्तार के साथ इमाम जब भी कुछ जानना चाहेगा तो परवरदिगार फौरन से उसके वजूद में इल्म को इल्का कर देगा, डाल देगा। ऐसे इमाम इल्म को हासिल करता है, और यही इल्म इमाम था। मेरे मौला अली ने हमेशा इस पर इफ्तिखार किया, हादा लुआब रसूलिल्लाह, हादा मिन अम्र नबी, नहनु मादिन नबुवा, नहनु मादिन नबुवा, का हम नबुवत का मादन है। ये उसी इल्म की तरफ इशारा किया जा रहा है। यानी जो कुछ रसूल अकरम के पास इल्मी हवाले से मौजूद है, या और दीगर कमालात जो नबी अकरम की ज़ात में खुदा ने रखे हैं, वो तमाम कमालात, उसमें इल्म भी शामिल है, वो मेरे वजूद में पोशीदा है। नहनु मादिनुन नबुवा, मादिनुन नबी नहीं कहा है, मादिनुन नबुवा कहा है। नबुवत और नबी, और जब नबुवत कहेंगे जितने भी बातिनी मकामात हैं नबी अकरम के, तमाम बातिनी मकामात जो मुंतकिल होंगे वो ज़ात आली इब्न अबी तालिब में मुंतकिल होंगे। ये मामूली मराहिल नहीं है। लिहाजा हमेशा इस पर इफ्तिखार किया मेरे मौला कायनात ने रसूल के इल्म पर। एक रिवायत सुने, तारीख़ी एतबार से मिलता है, क्योंकि इल्म में मौला कायनात इल्म रसूलुल्लाह था। रसूल अकरम ने भेजा मौला कायनात को एक मकाम पर, ईसाई महल्ला था नसरानियों का, कहा ली जाओ तबलीग करो। मौला कायनात की उम्र 24 साल। पहुंचे, वहां पर यह होता था कि एक बादशाह मौजूद था, और उस दौर में एक नसरानी राहिब निकल कर आता था, बहुत बड़ा आलिम था, साल में एक ही मर्तबा आता था। जब मौला गए उस एरिया में, क्या देखा, जम्मे गफीर है। मेरे मौला नाशनास तरीके से, यानी कोई ना पहचाने मौला को एक मकाम पर जाकर मजमे में बैठ गए। 24 साल की उम्र मौला की। अभी कुछ ये कहना चाहता था, बहुत बड़ा आलिम, इंजील का आलिम, पूरी इंजील इसको हिफ्ज़ है, अभी कुछ कहना चाहता, जबान में लुकनत आई। जब इल्म खुदा बैठा हो, इसमें जुर्रत ही क्या है कि कलाम कर सके। अली के सामने बड़े बड़े रह गए, ये क्या है, इतनी हैबत है। मौला हसन ना बोल सके,
मादर गिरामी ऐसा लग रहा है आज मुझसे बड़ा कोई मौजूद है, मुझे देख रहा है। तवज्जो कीजिए, ये कुछ कहना चाहता था, इसकी जबान में लुकनत आई। जो बादशाह बैठा था वो कहने लगा तू तो बहुत बड़ा आलिम है, क्या हो गया आज तुझे, तू बोल नहीं पा रहा है। कहने लगा कि आज न जाने मुझे क्या हो गया, कि अपने इल्म से पता चला, मालूम कर कि क्या मसला है, तू बोल नहीं पा रहा है। इसने अपना इल्म इस्तेमाल किया, कहने लगा कोई इस मजमे में मौजूद है जो मुझे बोलने नहीं दे रहा है, मेरी जबान में लुकनत आ रही है, कब मैं बोल नहीं पा रहा हूं, कोई तो है इस मजमे के अंदर। कब ये भी बयान कर दे, ये भी पता चला ले कि वो है कौन। मजमे को देखा, सामने इसकी निगाह मौला कायनात पर पड़ी, जानता नहीं है। कब मुझे लग रहा है, मेरा इल्म ये कह रहा है, ये जो जवान बैठा है इसकी वजह से मेरी जबान में लुकनत आ रही है। बहरहाल कहा कौन हो तुम? कहा मैं अहमद का वसी हूं। अहमद के वसी? तुम्हारा नाम क्या है? कहा एलिया नाम है मेरा। जैसे का एलिया नाम है मेरा। अब यह भी अलग दास्तान है, मेरे मौला का मिजाज भी अजीब है। कहीं पर नाम पूछा जाता है एलिया बताते हैं, कहीं पर नाम पूछा जाता है शंशब बताते हैं, और कहीं पर नाम पूछा जाता है हैदर बताते हैं। अल्लाह अकबर। या अली या अली। का एलिया नाम है मेरा। का एलिया नाम है? एलिया तो हमारी इंजील में लिखा हुआ है, यही तो अहमद का वसी है। इल्म में इमाम अली बयान करना चाह रहा हूं, जो इल्म रसूलुल्लाह का है वही इल्म मौला कायनात के पास मौजूद है। अगर रसूलुल्लाह के पास इल्म में इंजील है, मेरा मौला भी इंजील का इल्म रखता है। अगर ज़बूर का इल्म है तो अली भी ज़बूर का इल्म रखते हैं। अगर तौरात का इल्म है तो तौरात का इल्म भी अली के पास मौजूद है। उसने यही सवालात किए। कहा अच्छा तुम अहमद के वसी हो, तुम्हारा नाम एलिया है। कहा उसकी एक खुसूसियत है, जो इल्म रसूलुल्लाह का होगा वही इल्म उनके वसी का होगा। कहा तुम जानते हो? कहा बिल्कुल, जो पूछना चाहता है पूछ। सलूनी का दावा सिर्फ मिंबर पर नहीं किया है, मैदान में भी किया है। इल्मी मैदान हो वहां पर भी अली ने सलूनी का दावा किया है। कहा जो पूछना चाहता पूछ। अब एक मर्तबा उसने कहा कि मैं इंजील का आलिम हूं, लिहाजा मैं तुमसे 100 सवालात करूंगा। अगर तुमने जवाब दे दिए तो मैं मान जाऊंगा तुम अहमद के वसी एलिया हो। अगर जवाब ना दे सके तो फिर नहीं मानूंगा। मेरे मौलाना ने कहा जहां से पूछना चाहता है, इंजील में जो कुछ पूछना चाहता पूछ, अली उसका जवाब देगा। अब 100 सवालात लिखे गए, लिहाजा 100 सवालात तो बयान नहीं किए जा सकते। चंद सवालात बयान करना चाहूंगा ताकि मालूम हो इल्म इमाम अली का मकाम क्या है, इल्म इमाम होता क्या है, इल्म इमाम की कैफियत क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी हद क्या है। का पहला सवाल यह है कि बताओ वो कौन सा एक है दुनिया में जिसका दूसरा नहीं है कोई। फिर कहा कि बताओ कौन सा दूसरा है जिसका तीसरा ही नहीं है। फिर कहा कि कौन सा तीसरा है जिसका चौथा ही नहीं है। फिर कहा कि कौन सा चौथा है जिसका पांचवा ही नहीं है। वो कौन सा पांचवा है जिसका छठा ही नहीं है। उसके बाद सवाल करता गया। उसको जब पूछना था वो उसने फिर सवाल किया, बता कि वो कौन सी 12 चीजें हैं जिसका 13वां है ही नहीं। मेरे मौला ने एक एक करके जवाब भी दिया है। मेरे मौला ने कहा जो तूने सवाल किया वो कौन सा एक है जिसका दूसरा नहीं है। कहा वो मेरा परवरदिगार है जिसने मुझे खल्क किया है, उसका दूसरा है ही नहीं। वो मेरा परवरदिगार है, वो वहदहू ला शरीक है, उसका दुनिया में दूसरा है ही नहीं, कोई सानी नहीं है, कोई शरीक नहीं है। का दूसरा जो है उसका तीसरा नहीं है। का रात और दिन दो ही हैं, तीसरी कोई शय नहीं है। का तीसरी चीज जिसका चौथा नहीं है। का हमारे इस्लाम में 3 तलाकें हैं, 3 तलाकों के बाद चौथी तलाक नहीं है। उसके बाद कहा कि वो कौन सा चौथा है जिसका 5वां ही नहीं है। कहा कि वो अनासिर अरबा हैं, आग,
हवा, पानी, मिट्टी, कहा कि इन्हीं से इंसान को बनाया गया है। ये चार ही हैं, कोई पांचवा इसका नहीं है। कहा जो पांचवी है इसका कोई छठा ना हो। कहा वो इंसान की 5 हिस्से हैं, उसकी कोई छठी हिस्सा नहीं है, जिनको हवा से खमसा कहा जाता है। उसने जब आखिरी सवाल किया, कब ये बता दीजिए कि वो कौन सी 12 चीजें हैं जिसका 13वां है ही नहीं। मेरे मौला ने कहा कि वो 12 चीजें मोहम्मद के 12 वसी हैं, उनमें से पहला वसी मैं हूं, आखिरी हमारा मेहदी है। या अली या अली या अली मदद हक हैदर। तो ये इल्म इमाम है। ये मौला कैसे जवाब दे रहे हैं, क्यों जवाब दे रहे हैं? मौला बता रहे हमारा ताल्लुक किसी दुनियावी उस्ताद की तरह नहीं है। एक सब्जेक्ट में चंद चीजें उसको मालूम हो जाएं, उसके बाद कल पूछो बता नहीं पाएगा। कि हमारा इल्म खुदा के इल्म से मुत्तसिल है, कि हमारा इर्तिबात आलम गैब के साथ है, हमारा इर्तिबात कुरान के साथ है, हमारा इर्तिबात रसूलुल्लाह के साथ है। जो कुछ रसूलुल्लाह को अता हुआ वो तमाम का तमाम हमारे सीने में खुदा ने डाला है। अली जो जवाब दे रहे हैं इल्म परवरदिगार से मुत्तसिल हैं। अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि वक्त हमारा तमाम हो चुका है, कल अपने मौजू से कोशिश की जाएगी इसको मुत्तसिल कर दें, क्योंकि कल वाला मौजू भी तकरीबन इमामत के ऊपर ही है। इंशाअल्लाह कोशिश करके आज कुछ बातें जो रह गई हैं उसको मुत्तसिल करेंगे कल वाले मौजू के साथ। आज यहीं पर इक्तफा करते हैं। आज बरादर जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का सलाम पढ़ रहे थे। अय्याम शहादत है, जनाब सकीना चल रहे हैं। अज़ादार वाक़न पता नहीं चलता कि इस बीबी की मुसीबत कहाँ से शुरू की जाए। करबला में अगर देखें तो इतने मसाइब इस बीबी पर ढाए गए। जब तक चचा अब्बास जिंदा था, जब तक मेरा मौला हुसैन इब्न अली जिंदा था, बीबी को बड़ा इत्मीनान था, तमाम बीबियों को इत्मीनान था, लेकिन 4 साल सकीना को बहुत ज़्यादा इत्मीनान था। किसके ऊपर? अपने चचा अब्बास के ऊपर। बच्चों को दिलासा दिया करते थी, बच्चों बच्चों चचा अब्बास अभी जिंदा है। अज़ादारों, ये बच्ची 4 साल बच्ची थी, लेकिन जो मुसीबतें इस बच्ची पर ढाई गई, कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें। ज़रा तसव्वुर कीजिए, छोटा सा सिन हो, छोटा सा चेहरा हो, बीबी मुझे माफ़ कीजिएगा, छोटा सा सिन हो, छोटा सा चेहरा हो, और हाथ कितना बड़ा हो, और हाथ भी शिमर मलून का हो। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, जैसे मेरे मौला हुसैन की शहादत हुई है, उसके बाद अज़ादारों जब खैमों को जला दिया गया, जब खैमे जल गए हैं, एक मर्तबा जब खैमे जल गए, बीबियां खैमे से दूसरे खैमे में जाती थी, कभी दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में जाती थी। अभी हालो परेशान बीबियां इधर उधर घूम रही हैं। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने क्या देखा, जब बच्चों को गिना तो एक बच्ची सकीना कम नजर आ रही थी। मेरी बीबी ज़ैनब मक्तल की जानी बड़ी है, एक मर्तबा मक्तल की जानी बीबी बड़ी है, एक मर्तबा ज़ैनब कुबरा आवाज़ देती जाती है, ए बेटी सकीना कहाँ पर हो, बेटी सकीना कहाँ पर हो। अज़ादारों, कोई आवाज़ ना आई। जनाब ज़ैनब मक्तल की जानी बड़ी है, मक्तल की जानी जब बड़ी है, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने क्या देखा कि एक बच्ची है जो सर बुरीदा लाशे पर सर रख के सो रही है। अजरुकुम अल्लाह। सर रखकर सर बुरीदा लाशे पर बड़े आराम से सो रही है। अज़ादारों, ज़ैनब कुबरा ने बच्ची को जगाया, एक मर्तबा सवाल किया, कहा बेटी सकीना तुम यहाँ पर कैसे पहुंची। सकीना कहती है, ए फुप्पी अम्मा, जब खैमों को जला दिया गया, जब खैमों को आग लगा दी गई, एक मर्तबा मैं मक्तल की जानिब आई, मेरा दिल कह रहा है सकीना को अपने बाबा का सीना याद आया होगा, सकीना को नींद आ रही होगी, तभी सकीना मक्तल की जानी पड़ी थी। अजरुकुम अल्लाह।
तभी सकीना मक्तल की जानी बढ़ी थी। सकीना कहती है, ऐ पुप्पी अम्मा, मैं मक्तल में आई, मुझे मालूम नहीं था मेरा बाबा कहाँ पर है। कहा सकीना तुमने बाबा को कैसे तलाश किया? कहा कि मैं बाबा को सदा देती जाती थी। ऐ बाबा, सकीना को जवाब दो। जैसे ही मैंने कहा तो यहाँ से आवाज आई, ऐ बुनैया बुनैया, इलैया इलैया, ऐ बेटी मेरे पास आ जा। अजरुकुम अल्लाह। अदद और आखिरी दो जुमले। अज़ादारो, यहाँ पर बीबी की मुसीबत तमाम नहीं हुई है, बीबी की मुसीबत अभी बाकी है। अज़ादारो, एक मर्तबा जब खैमों को जला दिया गया, जब खैमे जल गए हैं, एक मर्तबा यही सकीना है। अज़ादारो, शाम गरीबा है, शाम गरीबा में यह बयान किया जाता है जब खैमों को आग लगा दी गई, ये बच्ची एक मर्तबा देखा गया। रावी कहता है मैंने एक बच्ची को शाम गरीबा में देखा, उसके दामन में आग लगी हुई थी। रावी कहता है मैं उसके आग को बुझाने के लिए आगे बढ़ा, जैसे मैं आगे बढ़ता था बच्ची पीछे हटती जाती थी। मैंने कहा ऐ बच्ची, मैं तेरी हिमायत करना चाहता हूँ, मैं तेरे दामन की आग को बुझाना चाहता हूँ। जैसे शेख ने यह कहा, बीबी सकीना कहती है ऐ शेख हमारे नजदीक ना आना, हमारे मोहम्मद में से। अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमला ज़ादर हो, हम आले मोहम्मद में से हैं, हमें हाथ मत लगाना। बीबी कहती है ऐ शेख अगर हमारी मदद करना चाहता है तो एक एहसान मुझ पर कर दे, मुझे नजफ का रास्ता बता दे। कहा बीबी नजफ जाके क्या करोगी? बीबी कहती है नजफ में मेरा दादा अली रहता है, अपने दादा को जाकर बताऊंगी ऐ दादा अली आपके बाद बड़े तमाचे खाए, ऐ दादा अली आपके बाद हमें असीर करके करबला से कूफा। अल्लाह व लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन। हुसैन हुसैन। उस क़िबला ने बात कहाँ छोड़ी कि मौला हुसैन की लाडली बेटी ने मौला हुसैन के जाने के बाद अपने दादा अली से फरियाद की कि दादा मैंने बड़े तमाचे खाए हैं। बस यही फरियाद ये बच्ची अपने बाबा से भी कर रही है, अपने बाबा के कटे हुए सर से फरियाद करती हैं बेबी सकीना। हाय जब मुझे आप के कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आप के कातिल ने है मार, अरे हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आप के कातिल ने है मार बा, जब मुझे आप के दिल ने है मारा बाबा। सोचिए 4 साल सिन है इस बच्ची का। मौला हुसैन की नाजों से बली सकीना अपने बाबा के कटे हुए सर से फरियाद कर रही है। कटा हुआ सर है, खून बह रहा है सर से, और 4 साल बच्ची अपने बाबा से फरियाद करती है, हाय मुझे बालों से पकड़ के तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ के तमाचे मार, मैंने सर शेम्र से मांगा जो तुम्हारा बाबा, जब
बाबा जब मुझे सलामत रहे गिरिया करने वाले सरदार मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के है मारा या हुसैन। मौला हुसैन की लाडली बेटी सकीना अपने बाबा के सीने पे सोने की आदि थी ना, न जाने आशूर के बाद कैसे सोई है बच्ची। आपके सीने पे आराम से सोने वाली, आपके सीने पे से सोने वाली, अरे सो के अब खाक पे करती है गुजारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने है जब मुझे क्या हुसैन कातिल ने है मारा बाबा। बेटियों की हसरत होती है कि बाप के दिए हुए तोहफे को जब तक जिंदगी रहे सलामत रहे तब तक अपने सीने से लगा कर रखे। लेकिन हाय हुसैन की बेटी की किस्मत के मौला हुसैन के जाने के बाद जालिम ने वो गुशवारे छीने जो बेइंतहा मोहब्बत के साथ मौला हुसैन ने पहनाए थे अपनी बेटी सकीना को। अभी भी सकीना मौला हुसैन के सर को देख के फरियाद क्या करती है, हाय वो जो दुर आपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो दुर आपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, अरे उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। है साथ रहवारों के दौड़ाया गया है मुझको, साथ रहवारों के दौड़ाया गया है मुझको, चूर जख्मों से बदन मेरा है सारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। जितने ज़दार मौजूद हैं सीनों पे हाथ मार के पुरसा पेश करने के लिए कलाम से तामिल हुक्म कलाम से चंद अशआर पढ़ता हूँ। सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले, सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले, मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले। ये करती थी माँ लहद पर बुका मेरी लाडली चलो घर चले, सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले। यहाँ से चलो चले करबला वहीं पर तुम्हें मिलेंगे चचा, सितम जो हुए बताना उन्हें दिखाना उन्हें ये कुर्ता जला, चचा जान को दिखाना जरा रिदा खूं भरी चलो घर चले, सकीना मेरी जान उठो रिहाई मिली
चलो घर चले। बदर से मिलो तो दिल जोई हो, बताना उन्हें बहुत रोई हो। कसम लो अगर तुम्हारे बिना सकीना कभी कहीं सोई हो। लहद बाप की मिले जब तुझे तो कहना यही, चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली, चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली, चलो घर चले। बताना उन्हें सभी सख्तियां मिली किस कदर तुझे घुड़कियां। हमारी रिदा लुटी किस तरह, छिनी किस तरह तेरी बालियां। बताना उन्हें बुझी किस तरह तेरी तशनगी, चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली, चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली, चलो घर चले। बदर से मिलो तो दिल जोई हो, बताना उन्हें बहुत रोई हो। कसम लो अगर तुम्हारे बिना सकीना कभी कहीं सोई हो। लहद बाप की मिले जब तुझे तो कहना यही, चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली, चलो घर चले। सकीन मेरी जान उठो, रिहाई मिली, चलो घर चले। शबीर की वो लाडली, शबीर की वो लाडली, ऐ सीने पे जो शाके पली, सीने पे जो शाके पली। अरे जिसकी अबा बन में चली, जिसकी अबा बन में चली, मुंह पर तमाचों के निशान। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हुसैन, हुसैन। अब वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे बीमार था। चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था। और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था। और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। रो कर कहे कासिम की माँ, रो कर कहे कासिम की माँ। मारा गया कासिम जवान, मारा गया कासिम जवान। अरे लाल मैं ढूंढूं कहाँ, लाल मैं ढूंढूं कहाँ। मेहंदी तेरी सेहरा तेरा मौला। इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन। तेरा बाजार में जाना, मरियम तेरा बाजार में जाना, गैरत 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 मरियम
सकेगा इस ताश ज़माना। ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। ज़ैनब कुलसूम की जीती है रिदाए। ज़ैनब कुलसूम की जीती है रिदाए। जाओ हर लोगों मेरे गाजी को बुलाना। ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। दूध कर ज़ारा है नवासी है नबी की। दूध कर ज़ारा है नवासी है नबी की। सरनागे तेरा शाम के बाजार में जाना। ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। अब खाके पे सोए भी सकीना तेरी कैसे। अब खाके पे सोए भी सकीना तेरी कैसे। था तूने सिखाया इस सीने पे सुलाना। ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। ना भूल सकेगा इस ताश ज़माना। ना भूल सकेगा इस ताश ज़माना। ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा